ग्लेने ईगल्स अस्पताल में घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज। मुंबई घुटने और कूल्हे के दर्द से पीड़ित मरीजों के लिए परेल स्थित ग्लेने ईगल्स अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज शुरू किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक सर्जरी की शुद्धता को बढ़ाने, रिकवरी समय को कम करने और मरीजों को बेहतर परिणाम देने के लिए डिजाइन की गई है। ऑर्थोपेडिक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप खत्री, डॉक्टर गिरीश भालेराव, डॉक्टर श्रीधर आर्चिक, डॉक्टर S.V. वैद्य और डॉक्टर नीलकंठ धामनकर की टीम इस नई तकनीक से मरीजों की सर्जरी कर रही है। इस तकनीक से डॉक्टर पहले से सटीक योजना बना सकते हैं और ऑपरेशन के दौरान भी बदलाव कर सकते हैं, जिससे मरीज को बेहतर परिणाम मिलता है। इस तकनीक से पहला फायदा उठाने वाले मरीज हैं 80 साल के श्री भरत चौहान, जिन्हें 15 साल से जोड़ों में दर्द था। 27 मई 2025 को उनका रोबोटिक घुटने का ऑपरेशन हुआ। That this hospital has achieved in the past, but I'm feeling proud today to tell you all that when we actually achieve something in terms of upgrading ourselves when it comes to technology, I think that is something to talk about. All of us know that India is aging in terms of our population is also aging. We see a lot of patients who have knee pains, osteoarthritis, and so on and so forth. And at the same time, I was just discussing with the senior doctors today that now amongst all the surgeries that happen in India, total knee replacement is the highest numbers that we see in corporate hospitals or private hospitals nowadays. Now earlier on, patients were having issues that whether at the age of 60s or 50s, whether they should undergo this because they are, as it is suffering from so many other things, diabetes, blood pressure, so on and so forth, whether this would add to their agony. And that was the reason that people were very reluctant to undergo the knee replacements or hip replacements or any other surgery for that matter. And of course, we've seen also, our senior doctors will talk about it, that patient undergoing any surgery when it comes to replacements, they had a big recovery period, long recovery period, a lot of pain, and that's why there was a reluctancy. In fact, it was so difficult for them to kind of get operated, two knees operated at the same time. One knee had to be operated, then there was a wait time, then again the second one, and of course a whole lot of time for rehabilitation, physiotherapy and all. But with this advent of robotic system now, a lot of things are going to change. They have already started changing. I mean, this is a new era, I can say, a paradigm shift which is happening. When it comes to knee replacement. The outliers, in statistics there is one word called outliers. Outliers are brought in from not so good result to excellent result. So here we are. The precision part and robotics cannot be overemphasized in this point of time in life after what we heard about what happened to one of the most modern aircraft. Precision brings down the human error element, and that's why we are all, me and my very capable colleagues here, are out to prove to this part of Mumbai at least that we have an excellent machine, we are expecting excellent result and a patient flow after that. Last but not the least, I think it is wrong to say that when we were not having robot, the surgery was no good. We have a decent result in 20 years in total knee replacement. What is important is from 94%, I am sure it will be pushed to 96 or 98% success rate when you have robot in your armamentarium. So with that, I hand out the mic to my friend, colleague, Dr. Neil Dhamnaskar. Neil? Hi, I am Dr. Neelkanta Dhamnaskar. I am working in clinicals with as an arthroplasty surgeon. It's a joint replacement surgeon. Just to give you a brief history about the arthroplasty. Knee replacement, joint replacement is one of the most successful surgery in our field. To understand the importance, what do you mean by joint replacement? It contributes to world 0.65% of world GDP. So you can understand the importance of this surgery. Now this surgery, though it is successful, why we are, now last 25 years we are doing this knee replacement and hip replacement. Why there is a need of robot? Now, robot is, people say that's a robotic knee replacement or robotic hip replacement. It is not robotic knee replacement. It's a robotic
assisted knee replacement. It is done by the surgeon. It is sometimes people come to us with the idea that robo is going to do the surgery. So we have to explain to them, no, we are going to do the surgery. You need an experienced surgeon who can open the joint. Then with the help of the robo, how robo helps us? Robo does a basically planning of the surgery a day prior. So when we have entered the OT, we are aware what type of knee prosthesis, what is the size of the knee prosthesis we are going to use, and what are the problems we are going to face. And those problems the surgeon is going to tackle. So the first thing is the planning is given by the robo. Second is the precision, as Dr. Shavle said. Why precision is important? When we are, since we are with the 3D CT, first the 3D CT is done. With the 3D CT, when we decide this size is needed, so this is a precise size, and what is the flexion gap, extension gap in the knee replacement. So that is done by this robo. And third, while doing the surgery, how the robo helps us? So robo has got it assists us while cutting the bone. Okay, so the bone cuts are done accurately so that those prostheses are fixed exactly in the position which we have planned before the surgery. So this basically we are going to execute that plan by doing the robotic surgery. So these are the three basic benefits we get with the robotic. Initially also the success rate, as Dr. Vaidya said, that around 94% people used to live till around 15 years of survival for that process. We are aiming that because of this precision and accurate placement, we should hope that it should go up to 98. Means what? The 98% processes at least should last for next 15 to 20 years. So that is the aim with the using the robo, and I am sure as in last 25 years we did the knee replacement, next couple of years we will definitely improve the results. Thank you. You know, I'm a mid-ager which has come, which you're very enthusiastic about to use now. How do you feel about it? Yeah, thank you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you for coming here on such a busy day. So, most of the points I have really properly put forward by my senior surgeons, but I'll try to simplify them for you all. So, अगर कोई पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए आता है, वो आता है कि नी पेन है, नी डिफॉर्मिटी है, पैर टेढ़ा है और वो सीधा होना चाहिए, और हमारा एम रहता है कि उसको अगर वो चल नहीं रहा है पेन के कारण, तो पेनलेस विदाउट पेन चलना फिरना शुरू करे और उसका जो डिफॉर्मिटी या फिर टेढ़ा बने वो भी सीधा हो जाए. तो दिस आर टू मेन एम्स, एंड द थर्ड इज, एज सर राइटली पॉइंटेड आउट, कि सर्जरी के बाद में ये नी रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो कितने साल तक चलेगा, ये भी पेशेंट का एक थर्ड क्वेश्चन रहता है. सो टू सॉल्व ऑल दिस थ्री क्वेश्चंस, इतने सालों से जो भी है रिसर्च उसी के ऊपर चल रहा है, साइंस जो है उसी की तरफ जा रहा है. तो रोबोटिक्स इज अ न्यू टूल इन इट, और इट हेल्प्स इन ट्राइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस एज वेल. सो एक के बाद एक हम देखेंगे कि अगर पैर टेढ़ा है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है पैर का, तो हम सर्जरी के पहले अब तक क्या करते थे कि रोबोटिक जब नहीं था एक्सरेज करते थे सर्जरी के पहले, और सर्जरी के बाद में एक एक्सरे करते थे. सर्जरी के दौरान हमारे पास क्या टूल्स रहते थे जिससे हम वो अलाइनमेंट सीधा करें? कुछ भी नहीं. तो उसके दौरान हमारे पास क्या रहता था कि सिर्फ वो रॉड्स रहते थे जिससे हम अलाइनमेंट देखते थे, रॉड लगा के कि हाँ ये पैर सीधा लग रहा है अभी, तो ठीक है ये ऐसे ही रखो, नहीं ये पैर अभी भी टेढ़ा लग रहा है तो उसको और कट लो या फिर रिलीज करो और उसको सीधा करो. तो ये ऐसे छोटे छोटे टूल्स सर्जरी के दौरान हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट रोबोटिक. और वही रोबोटिक आने के बाद क्या है कि हम पहले एक सीटी स्कैन करते हैं पेशेंट का, वो सीटी स्कैन रोबोट को सॉफ्टवेयर को फीड किया जाता है. वही सीटी स्कैन के दौरान हम सर्जरी के दौरान हमें वो 3D पिक्चर देता है पूरा, और वो 3D देने के कारण क्या है कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं सर्जरी के दौरान, हमको लाइव सर्जरी के दौरान दिखता है कि ये ठीक है, हम अगर इतना कट लेंगे बोन कट तो फिर वो पैर कितना सीधा होगा या फिर कितना टेढ़ा रहेगा और करना चाहिए. तो वो हमें सर्जरी के दौरान गाइड करता है, और सिर्फ गाइड ही नहीं करता है, वो हमें वो प्लान रीच करने के लिए भी हेल्प करता है. तो सर्जरी के एंड तक हम प्रॉपर जो प्लान कर रहे हैं पहले वो प्रॉपर पहुंच रहे कि नहीं, वो भी हमें हेल्प करता है. कितने भी मतलब सीनियर हो या फिर कितने भी सर्जरीज किए हो, हर बार सर्जरी के बाद में पहले लगता था कि हमने जो प्लान किया था उससे थोड़ा सा 1 mm या 1 डिग्री थोड़ा अलग हो गया है सर्जरी के बाद. पर रोबोट आने से वो चांसेस कम हो जाएंगे, जैसे सर ने बोला वो आउटलायर्स कम हो जाएंगे. तो जो बहुत कम चीजें, मतलब नी रिप्लेसमेंट के बाद में अभी वर्ल्ड ओवर डेटा के हिसाब से अराउंड 15-20% पीपल अनहैप्पी है.
तो वो क्यों है? तो वो ये आउटलायर्स रहते हैं, जैसे सर बोल रहे थे कि 1 या 2 डिग्रीज थोड़ा सा प्लान से अलग हो गया तो फिर वो बाद में भी थोड़ा पेन हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करेंगे। तो वो कम करने के लिए ये रोबोटिक सर्जरीज हमें हेल्प करेंगे। दूसरा होता है कि सर्जरी के बाद में पेन, तो पेन ना हो तो रोबोटिक सर्जरी के कारण क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग या फिर मसल कट्स जो है वो ना के बराबर हो गए। तो सॉफ्ट टिश्यूज अगर हैंडलिंग कम होगा तो ऑटोमेटिकली सर्जरी के बाद में पेशेंट को पेन भी कम रहेगा। पेन कम रहेगा तो उसके कारण उसका जल्दी मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, नी के मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, चलना फिरना शुरू हो जाएगा। एंड देन पेशेंट्स आर सो वेल डूइंग नाउडेज की सर्जरी के नेक्स्ट डे को ही डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। पेशेंट इतने हैप्पी रहते हैं रोबोटिक सर्जरीज के बाद में। एंड तीसरा पॉइंट विच आई सेड कि लॉन्ग लास्टिंग या फिर लास्ट लॉन्ग होना चाहिए जो सर्जरी में हम लोग इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस है, उसमें से एक अलाइनमेंट है। जैसे मैंने बोला अगर घुटना टेढ़ा ही डाला होगा तो फिर वो जल्दी खराब होने के भी चांसेस है। तो फिर वो रोबोटिक के कारण हम जो प्लान कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा, तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट सही रहेगा और फिर वो लॉन्ग लास्ट करेगा। दूसरा है ये जो बोन्स को फिक्स होते हैं इम्प्लांट्स, वहां पे सीमेंट यूज करते हैं। डिपार्टमेंट एक्चुअली एज ए क्लिनिकल सर्जन, जैसा सबने आपको बताया है कि आर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन हो गया है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, तो डेफिनेटली रोबोट क्या कर रहा है, क्या क्यों आया रोबोट? रोबोट आने का गरज 30 सालों से हो रहा है अपने देश में, सर्जरी अपने देश वर्ल्ड ओवर। तो व्हाट डज दिस टेक्नोलॉजी मेक्स यू चेंज इज दैट द प्रिसीजन, द प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। जो हम लोग टेक्निक ऑफर कर रहे हैं, रोबोट हमको उसमें हेल्प कर रहा है। रोबोट कोई खुद सर्जरी नहीं कर रहा है, वी आर जस्ट डूइंग इट and it is helping us to add on to the precision to a specificity of 0.1 mm. So that is the true precision in which we can offer you these surgeries कि हम लोग कोई चांस ही नहीं देना चाहते। ऑपरेशन के बाद ये होना था, ये हो गया, there is nothing left to chance or there is nothing left to we plan this thing that thing, nothing. So उसमें हमारा जो रोबोट है वो एक CT बेस्ड रोबोट है। हम लोग सर्जरी से पहले हर पेशेंट का 3D CT स्कैन करते हैं। ये 3D CT स्कैन सिर्फ नी जॉइंट का नहीं है, इट एनकम्पासेस द हिप, द नी एंड द एंकल। सो किसी भी पेशेंट, अगर आपका पेशेंट का कोई जुड़वा भाई बहन भी हो जो जेरोस्कोपी एक दूसरे का, लेकिन होता क्या है कि दोनों की चाल में फर्क हो सकता है। कोई एथलीट है, कोई डांसर है, देयर लाइफस्टाइल इज डिफरेंट। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कमिट टू दैट पर्टिकुलर बायोमैकेनिकल एक्सिस। तो ये जो पॉइंटर्स है, सेंटर ऑफ नी, सेंटर ऑफ हिप, सेंटर ऑफ एंकल, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करे तो एक बायोमैकेनिकल एक्सिस बनती है। ये हर पेशेंट का, जैसा आपका थंबप्रिंट होता है वैसे हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है। तो पहले रोबोट के आने के पहले एक है ना, एक आइडियल नी बनाया गया था कि ऐसा होना चाहिए, हिप नी एंकल स्ट्रेट कर दो। अब आप सोचो, आपने कितने फैमिलीज देखे होंगे जिनके दादाजी, बेटा, पोता जी सबके पैरों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन क्या ये जन्मतः गलत है? नहीं, ये उनकी नेचुरल चाल है। अभी आप सोचो कोई पेशेंट 60 साल की उम्र तक ऐसी चाल चला है, लेकिन हम ऑपरेशन के बाद उसको सीधा कर रहे हैं। जब गॉड ने ही किसी को इक्वल नहीं किया है तो हम लोग सर्जरी के बाद सबको स्ट्रेट कैसा करें? तो इस रीजन से वो आते हैं डिससैटिस्फैक्शन रेट्स। और इसलिए काफी बार जनता में ये डर रहता है कि सर्जरी नहीं कराना है, या फिर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत लगेगी, सर्जरी का पेन बहुत होता है। ये बहुत सारे कंसर्न्स है लोगों के। तो हमने फिर समझा ओवर इयर्स, जब नी रिप्लेसमेंट हो रहे थे तो लोगों ने, जो डॉक्टर खत्री बताया कि कभी कभी ना एरर हो जाता था लोगों से, 2-3-4 mm का डिविएशन प्लान नहीं करते थे फिर भी हो जाता, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम पेशेंट्स इवन आफ्टर डिविएशन आर हैप्पी। तो बोला अरे हमने तो ऐसा प्लान नहीं किया था, ऐसा तो सर्जरी हो, लेकिन पेशेंट खुश क्यों है? तो देन केम अ क्वेश्चन कि वी डोंट हैव टू स्टिक टू द ट्रू बायोमैकेनिकल एक्सिस, वी हैव टू ऑफर अ प्री आर्थराइटिक बायोमैकेनिकल एक्सिस कैरेक्टरिस्टिक टू दैट पेशेंट, जो पेशेंट का खुद का नेचुरल चाल है। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमें क्या कर रहा है, इट इज अलाउइंग टू ऑफर समथिंग कॉल्ड NJS, नो जॉइंट स्कोर। मतलब आपको आपका जॉइंट नेचुरल फील होना, आपको लगना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरी सर्जरी हुई है, ये कृत्रिम जोड़ है या आर्टिफिशियल जॉइंट है। तो हमारा जो रोबोट है वो 3D CT स्कैन, ये अपने सिटी में, फॉर दैट मैटर करंटली बिकॉज इट इज सो लेटेस्ट एडिशन टू आवर फैमिली आल्सो, आई एम यूजिंग दिस रोबोट फ्रॉम मेनी इयर्स। मैं यूके में, हम लोग ने जब यूके में फर्स्ट टाइम रोबोट आया था, आई एम द यूके's फर्स्ट रोबोटिक पास आउट बैच, तो वो टाइम से यूज करें। बट दिस रोबोट दैट वी हैव इन आवर सिस्टम इज द मोस्ट एडवांस एंड लेटेस्ट वन। क्या है इसमें एडवांसेस? इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक बताया जाए तो जैसे मैंने बताया CT स्कैन है, तो हम हर पेशेंट का इंडिविजुअल CT करते हैं। तो ये कोई आइडियल नी को रिफर नहीं कर रहे, हम उसी पेशेंट की नी को रिफर कर रहे हैं।
जिसमें हम लोग ये अलाइनमेंट, तो हम लोग प्री ऑपरेटिव टेम्पलेटिंग करते हैं, 3D टेम्पलेटिंग। इसका जब 3D इमेज बनता है तो हम लोग उसको ऊपर सर्जरी पेशेंट को टच करने से पहले कर रहे हैं, तो वी नो द इम्प्लांट पोजिशनिंग, सो दिस बिकम्स मच मोर कस्टमाइज्ड टू दैट पेशेंट। वंस वी नो दिस पार्ट, ऑपरेशन के दौरान हम लोग ये मेजर करते हैं। तो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, जब जॉइंट एक्सपोज होता है, जॉइंट एक्सपोज के बाद हम इसका मैपिंग करते हैं, कार्टिलेज मैपिंग। जोड़ना पूरी तरह से एक साथ नहीं खसता है, नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, ये रोबोट इनेबल्ड है नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए, पार्शियल नी, टोटल नी, पार्शियल हिप, टोटल हिप, हिप बाय एंटीरियर अप्रोच आल्सो, हिप बाय पोस्टीरियर अप्रोच आल्सो। सो आपको कोई भी जॉइंट समझने के लिए 3 एस्पेक्ट्स है, एक है अप्रोच टू द जॉइंट, एक है कस्टमाइजेशन ऑफ द जॉइंट, और एक है रोबोटिक प्रिंसिपल्स और कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द जॉइंट। सो अप्रोच में दिस रोबोट अलाउज अस टू बी एज मिनिमल इन्वेसिव एज पॉसिबल, जिसकी वजह से हमारे कट छोटे हो जाते हैं, हमारा कोई मसल टिश्यू डिस्टर्बेंस नहीं रहता। अगर मसल टिश्यू डिस्टर्बेंस नहीं है तो पेशेंट का रिकवरी फास्ट है, फिजियोथेरेपी की डिमांड कम हो जाती है। ये सब चीजों की वजह से पेशेंट जो दिन सर्जरी किया उसी दिन हम चलाते हैं, एंड बिफोर डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल द पेशेंट इज अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अनलिमिटेड वॉकिंग, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग एंड कमोर्जियर सिटिंग, सो दैट घर जाने के बाद उसका जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। 2 हफ्ते में टाका निकलता है एंड patient is allowed to resume activities. Some challenging activities like sports or sitting ground are patient to patient specific. We don't claim कि हम हर किसी को नीचे हुए, वो patient based रहता है, but with this technology the chances are much more better. We sometimes get patients who are precision improves by 400%, which is much more better. So that allows us to be more specific. ये एक बहुत ही sturdy arm है जो एक नेविगेशन के साथ सिंक होता है। तो जब हम लोग सीटी स्कैन तो कंसोल में चला गया, ऊपर मार्कर्स लगाते हैं, मार्कर्स नेविगेशन कैमरा के साथ सिंक होता है, और वो कैमरा इज कनेक्टेड टू दिस रोबोट। सो देयर आर 3 पॉइंट सिक्योरिटी चेक्स, सीटी स्कैन, नेविगेशन एंड द रोबोट इन सिंक विद लीड्स एंड द इंफ्रारेड कैमरा, एंड फाइनली द सर्जन हिमसेल्फ। तो जैसे मैंने आपको बताया, रोबोट सर्जरी नहीं कर रहे, रोबोट सर्जन की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने मेरे पेशेंट में कैसे प्रकार का जॉइंट बनाना है, और रोबोट हमें उतना स्पेसिफिसिटी से प्रिसीजन में डिलीवर करने को एक मौका देता है, which is so more accurate. Preoperative templating. Before the surgery, we are as a surgeon, हमारे मन में 1% का डाउट नहीं बचता है कि हम लोग क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। So the planning wise precision is 100%, execution wise it's 100%, but patient is a biological human being, so there are some factors which still cannot be predicted. What are those factors? The factors are patient's infection. अगर patient के अंदर ही कोई source of infection होगा, जो जिसको भी हम लोग mitigate करके, क्योंकि हम लोग pre anesthetic checkup करते हैं, हर patient का एक stringent test किया जाता है, तो step wise हमारे protocol defined है, जिसकी वजह से हमारी complication rate बहुत ही कम है। जो world person पे जो 2% कॉम्प्लिकेशन होता है, वी आर ऑफरिंग एट 0.4%, which is much less than the thing, because अपना हमारा OT बहुत clean होता है। We are a JC accredited hospital, so we have taken into account all small steps from patient preparation to OT preparation to sterility maintenance, हमारे instrumentation. So the overall outcome of this patient is near 100%, but we cannot say exactly 100% because we have to leave something, because human body is a biological thing. It's not like a machine, but you can say कि there is 99% survivorship, and the success rates are very much well defined in this kind of technology. And what are the risks and complications associated with this kind of surgery, and how can they be minimized? See, I think there are 2 things we are talking about today. One is precision on one side, and on other side, what exactly are the gains because of precision and what are the downsides of precision. पहले तो जिन्होंने रोबोट बनाया है, ये कंपनी के बारे में बोल दूं, ताकि प्रेसिजन क्या है, कैसी होती है। 2005 में कंप्यूटर नेविगेशन आ गया। कंप्यूटर नेविगेशन इज ज्ञानेंद्रिय, ट्राइंग टू नो इट बेटर। इसके बाद जब रोबोट आया तो रोबोट एडेड कर्मेंद्रिय, मीन्स दिस इज द प्रेसिजन, मुझे यहाँ जाना है, ये कट इतना ही मारना है, जैसा भलेराव ने कहा कि इतना 0.2
तक जाना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रोबोटिक आर्म आ गया. इट इज कॉल्ड एज रोबोटिक आर्म. सो एनीथिंग दैट इज प्रेसिजन एंड ह्यूमन एलिमेंट इज नॉट देयर. अभी पायलट्स के इतने हम लोग इंटरव्यू देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वन आफ्टर अनदर दे आर सेइंग दैट human error, human error, human error. You take human error out of everything and you definitely have better checklist, better buzzer alarms. आप ये सब लोग सुन रहे हैं, अभी ये सब एयरक्राफ्ट के 1 से 1 का हम लोग सुन रहे हैं. That is what is robotic surgery all about in general. Now it is there in prostate, it is there in liver, it is there in heart. And orthopedic there is something called the robotic journal. इसमें 7 years report orthopedic के आ गए. So, ये दुनिया के साथ हमें चलने के लिए with leadership in position, we are going to 100% have a better result. लेकिन complication कहीं रोबोट की वजह से नहीं होती है. कॉम्प्लिकेशन है. जैसे पहले उन्होंने बताया कि भाई इनका फना ब्लड का टेस्ट करना है, इन्फेक्शन के लिए करना है. ये जो प्रेसिजन आर्म है, चेकलिस्ट को बहुत मुलायम बना देता है. To add on to this, ये जो स्ट्राइकर कंपनी का रोबो है, so that was the one of the first I can say, which was started to be used for joint replacement surgery. Started in 2005 I guess. यूनिकोंडाइलर रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने पहले स्टार्ट किया था. जब ज्यादा कोई रोबोटिक सर्जरीज, मतलब रोबोट्स भी नहीं थे फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, दे ऑल एडेड ऑन लेटर ऑन. सो सिंस 2005 to now, almost they have been a lot of published papers also. So मेडिकल इसमें भी बहुत सारे उनके पब्लिश पेपर्स है जिनमें कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल शोन. सो ओवर लास्ट 15-20 इयर्स दे हैव बीन अपग्रेडिंग देमसेल्फ. तो अभी का जो रोबो है दैट इज द लेटेस्ट, एंड इन दैट इट हैज वन मोर एडिशनल थिंग, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात हुई. तो रोबोट अलग अलग है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए. सो कुछ रोबोट ऐसे हैं जिसमें यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन द रोबो कि वो कहाँ तक बोन कट कर रहा है. तो गलती से भी वो बोन के पीछे चला गया, जैसे कि बोन के पीछे हमारे मेन नर्व्स और वेसल्स रहते हैं जो पैर को सप्लाई करते हैं. अगर वो वहां पे चला गया, और हुए हैं ये रिजल्ट्स, वो रोबोट से ब्लड वेसल इंजर हो गया और फिर पैर पूरा खराब हो गया. सो ये रिजल्ट्स भी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं. बट इन दिस रोबो दे हैव समथिंग नोन एज हैप्टिक फीडबैक. सो वो एक बाउंड्री बना देता है. सो वो बाउंड्री के बाहर अगर सर्जन भी चाहे वो पुश करना सॉ को, वो पुश नहीं कर सकता कितना भी ताकत लगाए. सो इट होल्ड्स इट देयर, उसके पीछे वो जाने ही नहीं देगा. तो उस हिसाब से सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे इसमें लिए गए हैं. What type of implant is used and how long can it last? Well, this implant from Stryker company has been in use for 22 years. And one of the designer happens to be our colleague. He is called here for conferences and so many things. So this design is very popular. It is 34 percentile market share in United States, and it's a very good implant. Triathlon करके बोलते हैं इसको. इसका सिंगल रेडियस, सब टेक्निकल बातें हैं. अच्छा, ये स्ट्राइकर कंपनी का जो चेयरमैन है वो इंडियन है. डॉक्टर मिस्टर लोबो. ही इज फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम गोवा. ही हैज अ हाउस इन गोवा. और अपने लिए गर्व की बात है कि भाई इतने टॉप के कंपनी के जो चेयरमैन है वो अपने इंडियन है. How long does it last? Thank How long you. does it last? The surgery, the implant longevity as we talk today is 33 years. जो जहाँ कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन कोहॉर्ट में से जो पेशेंट है इसमें 33 years रिपोर्ट has come from इंसाल स्कॉट के इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क. सो ये टॉप ऑफ द लाइन है, इसमें कोई संदेह नहीं है. जैसे मुझे लगता है अनूप ने कहा कि ये सर्जरी ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल ऑफ टोटल सर्जरीज डन इन हॉस्पिटल रोबोटिक का नंबर 1 है आज की तारीख में. कि हमें रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करनी, तो कभी कभी पेशेंट को डर रहता है कि रोबो करेगा तो आप क्या करोगे. तो पहले उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये रोबोटिक बोला जाता है, बट एक सर्जरी मैं ही करूंगा, मैं वहाँ खड़ा रहूंगा, मेरे हाथ में सॉ रहेगा, मैं ओपन जॉइंट करूंगा. तो ये उनको पहले बताना पड़ता है. कभी कभी हम लोग उनको वीडियो दिखाते हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, तो उनको बताते हैं कि आप वो देखिए. बट देन रोबो, उनको ये बताना पड़ता है कि रोबो हमको गाइड करता है, ओके, कि कौन सा प्रोसेस यूज करे, कितना कौन से पोजीशन पे रखे, और वो वहाँ बैठा कि नहीं. और वन मोर
बेनिफिट कि टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, बीच में भी सर्जरी के बीच में भी रोबो हमें बताता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, सो वी कैन टेक अ चांस। जो हमें कन्वेंशनल जो हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई हमें बताता नहीं, मेरे आई साइड बताता है, बाई चांस मेरा असिस्टेंट सीनियर रहेगा तो बताता है सर थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बट अदरवाइज ये रोबो हमें बताता है, मॉनिटर पे दिखता है कि यस हम लोग थोड़ा 2 डिग्री पे रोटेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा वो करेक्ट करना है, तो वो चेंजेस हम ले सकते हैं। तो पेशेंट के जो काउंसलिंग रहता है तभी हम लोग पेशेंट को बताते हैं। 0, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, डीप फ्लेक्शन, हर रेंज का एक ग्राफ मिलता है कि आपका टिश्यू टेंशन कहीं ऑफ जा रहा है या नहीं। तो वी हैव अ पैरामीटर जिसमें हम बैलेंस करें ताकि वो रेंज आपको स्मूथ फील रहे। रोबोट हेल्प्स अस नोइंग दैट। Doctor, can the operation be conducted on both the knees simultaneously? Yes, very well. It can be. हम लोग उसमें 3 ये मानते हैं। पहला पेशेंट अगर 70 से नीचे रहना चाहिए, उसको उसके शुगर वेल कंट्रोल चाहिए और उनका किडनी एंड हार्ट इज वर्किंग वेल, देन इट इज ओके, वी कैन डू इट। सर होल्ड। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गिरीश भालेराव है। मैं ग्लेनिकल्स हॉस्पिटल परेल में फुल टाइमर कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमने आज हमारा रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास मोस्ट एडवांस रोबोट के साथ हम ये सर्जरीज जनता के लिए ऑफर करते हैं जो पीड़ित है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात के लिए। ये रोबोट हमें सशक्त करता है नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट इन ऑल इट्स मोडालिटीज। जैसे हम नी रिप्लेसमेंट में यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पार्शियल नी, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल हिप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट बाय डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एंड बाय पोस्टीरियर अप्रोच। हमारा जो ये संकल्प है, इसमें हम मिनिमल इन्वेजिव कस्टमाइज्ड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की, वो हम ऑफर करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। थैंक यू। प्लीज इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और नमस्ते, मैं डॉक्टर अनूप खत्री हूँ, क्लिनिकल्स हॉस्पिटल परेल मुंबई से, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। नी अर्थराइटिस बहुत कॉमन है और उसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी बहुत होते रहता है, पर हम ज़्यादातर देखते हैं कि कई सारे पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी नाराज़ रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत दर्द इधर उधर होते ही रहता है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें मदद करेगा, ये है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। रोबोट की मदद से हमें वो पेशेंट्स जिनको सर्जरी के बाद में दर्द होता है या फिर वो नाराज़ रहते हैं, वो कम करने में हमें मदद हो सकती है। मैं डॉक्टर श्रीनंद विश्वनाथ वैद्य, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी गए 28 साल से कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जो घुटने के प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, जिनको आर्थराइटिस कहते हैं, वो पेशेंट आज 95% पेशेंट अच्छी तरह चल रही है 20 साल के बाद। कोई भी चीज़ में प्रेसिजन लाना और ह्यूमन एरर जो बोलते हैं उसको कम कराना, ये कोई भी इन्वेंटर का एक चैलेंज रहता है। ये चैलेंज हम लोग सक्सेसफुली टैकल कर चुके हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल, क्लिनिकल हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, उसके 3रे माले पे हम लोग खड़े हैं और 4थे माले पे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ वो रोबोट रखा गया है और उसके 5-6 सर्जरी ऑलरेडी सक्सेसफुली हो गई और पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत 1 घंटे बाद चल रहे हैं। तो ये सब बातें जनता तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे रिजल्ट और सर्जन को और पेशेंट को आराम से सब प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। नमस्कार, मैं यहाँ ऑर्थोप्लास्टी सर्जन करके क्लिनिकल्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, जैसे मैंने बताया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नीज रहते थे, जिनमें बहुत डिफॉर्मिटी रहती थी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिफॉर्मिटी बोलते हैं, घुटने के ऊपर वाले हिस्से में और घुटने के नीचे वाले हिस्से में जब भी डिफॉर्मिटी रहती है और पैर बहुत टेढ़ा रहता है, वो पोजीशन के वक्त हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत है। एक ध्यान में रखिए, रोबोटिक, जैसे मैंने अभी भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी इज डन बाय द सर्जन, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। इसमें इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट करना, बहुत एक्यूरेटली करना काफ़ी इजी हो जाता है एंड रिजल्ट्स उनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं 44 ईयर ओल्ड हूँ और मैं 1 साल 2 साल से अपनी नी की दर्द से बहुत परेशान थी।
और मैं जब भी डॉक्टर गिरीश भार्गव से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन एंड देते रहे और मैं बोली, सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कब तक ये लॉन्ग टाइम तक की दवा लेंगे। सर ने मुझे सर्जरी के लिए रिकमेंड किया और मैं भी सर पे बिलीव करके मैं बोली नहीं, मुझे एक्शन अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे चलने में तकलीफ हो रही थी, कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं चलती जैसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग कर रही थी। एंड सर ने मुझे बोले कि आप ये कब तक झेलिएगा ये सब चीज़ें। तो मैं सर के बिलीव करके मेरी सर्जरी का लिए मैं तैयार हो गई। सर ने मेरे को सर्जरी की, पहले रोबोटिक के बोले, तो मैं बोली मुझे ये नहीं मालूम है, मैं ये नहीं कराऊंगी। तो सर ने बोले ठीक है, आप नॉर्मली करा लो। फिर जब मैं सर्जरी हुआ तो उसके बाद फर्स्ट डे भी मैं चलने लगी और मुझे लगा कि सर्जरी हुआ ही नहीं है। तो एक में सर ने नॉर्मल किया था, एक में रोबोटिक हुआ था। थोड़ा था जो नॉर्मल था, थोड़ा पेन था, लेकिन रोबोटिक में तो बिल्कुल 100% बिल्कुल दर्द नहीं था, जैसे लगा कि मुझे सर्जरी हुआ ही नहीं है। और मैं थैंक्सफुल हूँ जो मुझे गिरीश भार्गव जैसे डॉक्टर मिले और उन्होंने मेरा सर्जरी किया। आज मैं ठीक से चल पा रही हूँ। आज मेरी फीलिंग बहुत अच्छा भी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक से चल पा रही हूँ और आप लोगों के सामने खड़ी भी हूँ। और मैं थैंक्सफुल बार बार मैं बोलूँ सर एज डॉक्टर गिरीश भार्गव का, जो मेरे को इतने अच्छे ट्रीटमेंट दिए और इतने अच्छे डॉक्टर मिले। शायद सबको ऐसे डॉक्टर मिले और सब ऐसे आप लोग अपनी अपनी ट्रीटमेंट करा और अपने दर्दों से छुटकारा पाए। थैंक यू।